Assalamu alaikum dear students. Students, today we are starting with the questions of numericals from lesson number 3, that is atoms and molecules. So dear students, I hope you are able to observe the question over here, that is calculate the number of the moles from the following. Okay, and you are able to see that two questions are given over here, that is 52 gram of He, that is helium, and we have to find out the moles from the mass. So dear student, how we are going to do this? Let me show you the explanation of your this particular, that how we are going to solve this. So please pay attention. It is very important to understand this particular type of the numericals. So dear students, first of all, let me tell you that atomic mass of helium, atomic mass of helium is equal to 4U. Now we can write this U as a gram also. Okay, 4 gram, because we are having 52 gram. So we have to write it as a 4 gram. Okay dear students, this is first numerical in which we have to see. It is already solved in your textbook also, but it is needed to explain. So I am explaining you. Okay, number ऑफ मोल्स, हम मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं एज अ स्मॉल एन. ओके, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो डियर स्टूडेंट, गिवन मास को हम लिखते हैं एज अ स्मॉल एम एंड मोलर मास को लिखते हैं एज अ कैपिटल एम. ओके, ये तीन चीज़ें हैं. एन इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एम. तो एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, एम इज अ गिवन मास एंड कैपिटल एम इज अ मोलर मास. चलो, हमें यहाँ पर कितना ग्राम गिवन है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम. सो वी विल कॉल दिस एज अ गिवन मास. चलो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 52 डिवाइडेड बाय what is the molar mass? Molar mass is 4. Okay, if we go for writing over here gram and gram, तो gram and gram cut हो जाएगा. Okay, if we divide 52 by 4, we will be getting the answer as 13. Okay, so dear student, 13 is your answer over here, and we can say that the number of moles जो हमने find out किया यहाँ पर, that is 13. हमारा क्वेश्चन क्या था? काउंट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दी फॉलोइंग. तो कितने मोल्स है? 13 मोल्स. ओके, लेट अस सी विद द सेकंड वन. इट इज आस्क्ड दैट 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स. ठीक है, देखो पहले में ऑलरेडी गिवन है. फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम दी मास. तो हमने मोल्स किससे फाइंड आउट किया? मास से फाइंड आउट किया. सेकंड में हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं किससे? Number of particles. So dear student, how we do it? Let me tell you. This is the second one we are solving. This was the first one. Okay. Second one. We know that. हमें पता है ना? We know that 1 mole is equal to 6.022 इंटू 10⁻23. कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, चलो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल एन, हमेशा याद रखो. ओके, इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय n0. अच्छा डियर स्टूडेंट, ये n क्या है? n इज योर नंबर ऑफ द गिवन पार्टिकल्स. आपको कितने गिवन पार्टिकल्स है वो, डिवाइडेड बाय n0. व्हाट इज n0? एवोगेड्रोस नंबर. तो हमें यहाँ पे गिवन कितना है? 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. So I hope you are getting this clearly. 23 cancel हो जाएगा and 6.022, 6 2s are 12. Okay, so you will be getting your answer over here as a 2. आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 2 moles. How many moles?
2 moles. So this is the first question which is given in your book. Okay, so we have completed this one, and if you still found any difficulty, any doubt in this one, please let me know. Okay, I'm shifting to the second question over here. And dear student, in the second question you are able to see count the masses. आपको मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसका, मोल्स का मास फाइंड आउट करना है. डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है, हमें मास गिवन था. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, एंड मोल्स आर ऑलरेडी गिवन. ओके, तो चलो हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर. सॉल्यूशन आई एम राइटिंग एंड आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. लेट मी से दैट मास इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स. मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज व्हाट आई नो. ठीक है, तो फर्स्ट वन के लिए आई शुड नो दी मोलर मास फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. ओके, 7. तो उसका जो मास होगा दैट विल बी जनरली द डबल, दैट इज 14. अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस मीन्स 28. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल राइट 28 एज अ मोलर मास मल्टीप्लाई बाय कितना है 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आंसर आई विल गेट, आई विल गेट 14 ग्राम. व्हाट आंसर आई विल गेट, 14 ग्राम. इज इट क्लियर एवरीवन? फाइन. इसको मैं अगर 0.5 को 1/2 लिखूँ तो भी करेक्ट है ना. 2 को अगर मुझे यहाँ पे 28 से डिवाइड करना है, 28 को डिवाइड करना है, तो 2 1s are 2 and 2 4s are 8. So this will be solved. I hope it is clear to you. चलो second one. In second one what is happening? Second one में क्या गिवन है, 0.5 moles of N. चलो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम जाएगा, मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं ओनली नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14. ओके, इंटू 0.5 विच इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इफ़ आई राइट दिस एज 1/2, 2 7s are, so 7 gram is my answer. 7 gram is my answer. ओके, चलो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स आर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है. हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, पे अटेंशन. थर्ड वन, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू n/n0. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि मास इज इक्वल टू m इंटू n. तो मुझे n पता होगा तो मैं मास फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट. सो आई नीड टू डू दिस. अच्छा, मुझे पार्टिकल्स कितने गिवन है, 3.011 इंटू 10⁻23. एवोगेड्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23. चलो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट इज द मास ऑफ योर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 14 मल्टीप्लाई बाय, I will keep this value, this particular over here, that is into 10⁻23 divided by 6.022 into 10⁻23. ये 23 0 कैंसिल हो गया, ये 3 2s are 6. ओके, 3 2s are 6, ये 2 से आ जाएगा आपका, एंड 2 into 7. सो हाउ मच मास यू आर गेटिंग, 7 gram. It is very easy. We are getting 7 gram over here. Then the last one is fourth one. If I talk about same process, what I have to do, n is equal to n/n0. m is equal to mass is equal to n/n0 into capital M.
ओके, ये सेम है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने पहले इसको लिखा फिर बाद में इसको लिखा, ठीक है। हमें पार्टिकल्स कितने गिवन हैं, देखो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स गिवन है हमें यहाँ पर, दैट इज 0.622 into 10⁻23. So what I'm going to write, into 10⁻23 divided by एवोगेड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 into 10⁻23. गिवन नंबर मैचेस दी एवोगेड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन N2 का मास होता है 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस होल विल बी कैंसल एंड योर आंसर विल बी 28. Your answer will be 28. So dear student, these are the two particular sums which are given in your textbook. It is solved one, but I have explained you over here and I hope it is clear to you. Okay, dear students, now in text questions. In text question में सबसे पहला question है, if 1 mole of carbon atom weigh 12 gram, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? So dear students, सबसे पहली बात ये समझो that if we write 1 mole of carbon, if we write 1 mole of carbon atoms, कितने particles होंगे, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगेड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23. ठीक है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स आर देयर. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम, मतलब एक मोल मतलब 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स का अगर वजन कर रहे हैं तो आ रहा है 12 ग्राम. ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि 1 एटम, एक एटम का कितना, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन क्लियरली. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम, एक मोल कार्बन एटम्स जब वे किए तो 12 ग्राम आया, मतलब अगर हम 1 मोल की बात करें तो कितने पार्टिकल्स हुए, एवोगेड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23 एटम्स दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम. ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स का वजन अगर 12 तो 1 एटम का कितना. सो व्हाट जनरली वी डू, 12 multiplied by 1 that is 12 divided by 6.022 into 10⁻23. So dear student, when you are going to solve this you will be getting, ये जब आप 12 को 6.022 से डिवाइड करेंगे you will be getting 1.99 into 10⁻². अच्छा डियर स्टूडेंट, ये तो हमने 12 को डिवाइड किया 6.022 से. अच्छा, ये जो है 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो -23 हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर नंबर 1, योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, आपका जो पहला इंटेक्स क्वेश्चन है उसका आंसर. ओके, आई होप यू गॉट इट क्लियरली एंड स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. चलो, which has more number of atoms, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन. अब ये क्या पूछ रहे हैं कि 100 ग्राम सोडियम में और 100 ग्राम आयरन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे. ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है किसका, सोडियम का जो है 23 और Fe का है 56. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी सॉल्विंग लाइक दिस. सॉल्यूशन, 23 gram of sodium is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. That is equal to, ये क्या है, 1 mole. It is 1 mole. Okay, it is 1 mole. Now, 100 gram of Na is equal to how much? 100 gram of Na is equal to how much? ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल, जब 1 मोल होता है ना तो उसका वे होता है 23 ग्राम में अगर इतने पार्टिकल्स है तो 100 ग्राम में कितने. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 23 से डिवाइड करेंगे. So dear student, when you are going to solve this, when you will just divide this particular, you will be getting the answer 26.182 into 10⁻23 atoms. into 10⁻23 एटम्स, आपको इतने एटम्स मिल गए. अब सेम प्रोसेस करेंगे हम किसके लिए, Fe के लिए. चलो, Fe का गिवन मास कितना है,
Fe का गिवन मास है 56 ग्राम ऑफ Fe इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स, ये भी 1 मोल हुआ, ठीक है. सो वी आर हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ Fe इज इक्वल टू हाउ मच. सेम प्रोसेस करेंगे. 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 56. So dear student, here you will be getting the answer 10.753 into 10⁻23. जब आप ये 6.022 को 56 से डिवाइड करेंगे so you will be getting the answer 10 point something over here. So dear students, 100 gram of Na and 100 gram of Fe. 100 ग्राम ऑफ Na में कितने थे, 26.182 इंटू 10⁻23 और Fe में कितने हैं 10.753 इंटू 10⁻23. तो किस में ज़्यादा है, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, सो आवर आंसर इज Na हैज़ मोर number of atoms. Na has more number of atoms. So dear student, this is your particular numerical. First 2 numericals I have done, and still if you face any doubt, any problem anywhere, please let me know.